Okay, folks, these questions that I've asked you, what is the truth? What is justice? What are rights? What is the state? Why does it even exist? What is rulership? What is authority? What is a society? These are the kinds of questions that people have been asking for over 2,500 years. And they've been debating it endlessly. And that is what this course is about. Just the kind of questions and answers that you have, the discussion that you've had right now, that is really what this course is about. So what we're going to look at in this course are going to be various people that have provided various, sometimes sophisticated, sometimes not so sophisticated answers to questions precisely of this kind. This is the Constitution of Pakistan. The preamble to the Constitution of Pakistan states, wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. ये बहुत ही अहम फिक्रा है और इसके क्या मायने हैं अभी तक शायद हमें समझ नहीं आई। वो तो सो गई हैं, उन कह रही हैं कि पता नहीं सर, इतनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें पता चले इसके मायने क्या हैं। बट इसमें देखें कितने सारे इंटरेस्टिंग किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं। स्टेट भी है, एक्सरसाइज ऑफ पावर्स भी है, अथॉरिटी भी आ गई, चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं which in my opinion beg definitions. इससे मुराद क्या है आपकी? Who is the people? Etc. फिर ये देखें पाकिस्तान के आइन में लिखा है therein shall be guaranteed fundamental rights. ये क्या बुला है rights? Including equality of status, of opportunity before law, social, economic and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association, subject to law and public morality. So many different concepts that are just thrown at you, tuck, 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 like a machine gun, and you even think you know the answer. Yeah, of course, freedom of speech. Except when I ask you, what is the answer? What is a society, which is just a basic question, you're like, I never thought about that. You know, what is justice? What is the truth? You say, I never thought about that. That, my friends, is the work of philosophers. Philosophers always ask you the questions that you haven't asked yourselves. So when we talk about Western political philosophy, we're not just talking about what does the Constitution say, etc. But we're asking a deeper question. Why? What is the meaning of that concept? What is the meaning of justice? What is the meaning of rights? What is the meaning of state? What is the meaning of the truth? All of these concepts are important. ये देखो, Article 3 Constitution of Pakistan में लिखा है, elimination of exploitation. The state shall ensure the elimination of all forms of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability to each according to his work. कोई जानता है ये फ्रेज कहां से उठाया है? ये तो कार्ल मार्क्स का फ्रेज है। हैरान नहीं हो गए? आपके आईन है पाकिस्तान के अंदर कार्ल मार्क्स का फ्रेज लगा हुआ है। होए तो ये क्या चक्कर है? ये कहां से आ गया हमारे आईन के अंदर? कैसे आ गया? क्यों आया? कब आया? आज तक हमने क्यों नहीं सुना था? हमने क्यों नहीं पढ़ा था? ये सुने फिर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं अपने पहले आइन साज असेंबली के सामने जो उन्होंने खिताब किया 11 अगस्त 1947 को, he was telling the constituent assembly, लोगों आइन जो है इस किस्म का बनाना है, ठीक है? That's the speech. What does he say? You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other places of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion, caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. Can you imagine that Pakistan is created for Islam and now Jinnah says religion has nothing to do with the business of the state? I think anybody would have fallen off their chair. I'm sure a few people did. But there it is, right there in black and white. Surprising, shocking. So these are the kind of questions we're going to ask in this course. Where do we get these concepts? Now, here are a group of other concepts जो कि मैं मोटा-मोटा आपको बयान करूंगा, जो कि आपने सुने होंगे, कॉन्वर्सेशंस में हर वक्त हम इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। पहला है द आइडिया ऑफ थियोक्रेसी। ठीक है जी? इसमें क्या होता है कि जो पादरी हैं, उलमा हैं, प्रीस्ट हैं, दे रूल इन द नेम ऑफ गॉड, कि एक्चुअली खुदा की हुकूमत है, हम तो सिर्फ उसके रखवाले हैं। Israel from the time of Moses until the election of Saul as king was considered a theocracy. Vatican City today is a theocracy. Iran considers itself a quasi-theocracy. To the Tibetan government in exile, जहाँ ये Dalai Lama की तस्वीर भी बनी हुई है, that is a theocracy. The Persians under Zoroastrianism, the Achaemenid Empire can be considered a theocracy. The Taliban are very proudly establishing a theocracy. Daesh are trying to establish a theocracy. So it's basically rule in which religion dominates, and the people who dominate are the people who are the repositories of that religion. Then we have a concept of monarchy. The monarch is the head of state for life or until abdication. The monarch is the head of state for life, and when the monarch dies, who gets to be the monarch? The putter.
Sometimes the daughter as well. So we have absolute monarchy, which means कि जो monarch कह दे वही कानून है. अगर monarch कह दे off with his head, तो off with his head ही होगा. Then there's the concept of a crowned republic, which is a purely where the crown becomes only a symbolic authority. They don't actually have any power. So titles include king, queen, emperor, raja, khan, caliph, czar, sultan, shah. खलीफा भी मैंने शामिल कर लिया. आप थोड़े हैरान होंगे सर ये आपने ज्यादती कर दी, मगर मेरी मुराद है उमय्यद खलीफाओं से और अब्बासी खलीफाओं से और उस्मानी खिलाफत वगैरह से. That was a monarchy. Basically the Khalifa's son became the next Khalifa and the rest of it, जिसको मलूकियत भी कहा जाता है. So, and you might be surprised to discover that this is one of the most common forms of government that has existed probably in history. ज़्यादातर तारीख आप उठा के देखेंगे तो बादशाहतों की तारीख है मुख्तलिफ. If you study history तो आप में उधर डेमोक्रेसी तो बहुत कम नजर आएगी आपको. मिसाल तौर पे बेल्जियम, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सबकी मोनार्कीज हैं. हैरान नहीं होंगे सुन के. पाकिस्तान में कौन है मोनार्की? कोई भी नहीं. मगर सारी यूरोपियन कंट्रीज में मोनार्की, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक्सेप्ट फ्रांस ऑब्वियसली. सी इट्स नॉट ऑन द लिस्ट इन द अदर कंट्रीज एज वेल, बट बाकी हर जगह है. मगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है कि मोनार्क जो है उसकी पावर लिमिटेड है. कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डिसाइड करेगा कि क्या पावर है. फिर एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज हैं. आजकल मुस्लिम वर्ल्ड में कई हैं. बहरीन में, जॉर्डन में, कुवैत में, ओमान में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में और मोरक्को में ये मोनार्कीज हैं. हैरान होंगे आप सुन के, बट दैट्स द केस. कुछ ने अब कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स भी की हुई हैं. हमारे यहाँ खित्ते में मोनार्की हुआ करती थी. क्या नाम था उस मोनार्की का ब्रिटिश के आने से पहले? मुगल एम्पायर. पढ़ लिया इसने. मुगल एम्पायर वाज अ मोनार्क, मगर वो खत्म हो गई ना. ब्रिटिश ने आके बहादुर शाह जफर को रंगून आइलैंड पे ट्रैप कर दिया और सारी मुगल बादशाहत का सत्यानाश कर दिया, बुरा हाल कर दिया. अगर आप विलियम डैलरिम्पल की किताब पढ़े तो कंपनी तो आपको रोना है मुगलों पे भी. ओके, देन वी हैव दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड नेशनलिज्म. आजकल क्रिकेट नहीं चल रही, क्रिकेट है जो क्रिकेट चल रही होती है ना, दोनों पाकिस्तान इंडिया का नेशनलिज्म यहाँ पे होता है. पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, तो पागल हो रहे होते हैं. सो नेशनलिज्म क्या है? आइडेंटिफिकेशन विद वंस ओन नेशन and supports for its interest, especially to the exclusion or detriment of the interests of other nations. So nationalism mein hamesha we define ourselves, there has to be some definition. We define ourselves in opposition to somebody else, to something else, to some other nation, and it's organized around language. नहीं सर ये तो करेक्ट बात नहीं, मैंने पाक स्टडीज पढ़ी है. It is organized around religion. स्लाइड ठीक कर दूं? Well, all over the world the accepted definition of nationalism is that it is organized around language. And it is only here in South Asia that we have this exception that we say no, nationalism is organized around religion. Modern movements हैं कई जिसने nationalism को उभारा. सबसे पहली बात है कि nationalism बजाते खुद एक जदीद तहरीक है, एक जदीद तस्वर है. When was nationalism in fact, when did it come about? You will be shocked to discover. It's very recent. 1648 ये अभी कल की बात है. American Revolution 1776, French Revolution 1789, German Unification 1870. That's in the scale of history, कल की बात. यूरोप के अंदर अगर किसी को कह दे कि तुम नेशनलिस्ट हो, तो ये जनरली खासतौर पे एकेडेमिया के अंदर बड़ी एक किस्म की गाली समझी जाती है. यहाँ पे अगर आप किसी को कह दो कि तुम नेशनलिस्ट हो, कहता है थैंक यू. मगर वहाँ पे अगर कोई कहे कि तुम नेशनलिस्ट हो तो बड़ा बुरा समझा जाता है. क्यों बुरा समझा जाता है? क्योंकि they went through 2 wars which were incredibly destructive, जिसके अंदर 70 मिलियन बंदा मर गया. और दोनों जंगों की जो स्पार्क था वो नेशनलिज्म था. दोनों जंगों का स्पार्क नेशनलिज्म. तो वहां पे एकेडेमिया में खास तौर पे अगर आपको पेपर लिख रहे हैं तो आप कहें फलानी नेशनलिस्ट चीज, तो कहेंगे ये तो हिटलर टाइप कोई नाटसी टाइप मामला है, इससे दूर रहो तो बेहतर है. फिर और कॉन्सेप्ट्स हैं एनलाइटनमेंट और सेक्युलरिज्म, रेनेसांस, ह्यूमनिज्म. रेनेसांस इटालियन का लफ्ज़ है जिसका मतलब है रीबर्थ, और ह्यूमनिज्म का मतलब हो गया इंसानियत या इंसान परस्ती या ऐसा कुछ कह ले. तो वो ये कहते हैं, जो रेनेसांस ह्यूमनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि पहले लोग जो है वो खुदा के तस्वर के बारे में सोचते थे और आखिरत के बारे में सोचते थे, और रेनेसांस के बाद वो सोचते हैं कि इंसानों के हालात हमने किस तरह से बेहतर करनी. तो तवज्जो जो है वो ऊपर से उठ के ज़मीन पे आ गई कि भाई इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को कैसे बेहतर करना है. असल सवाल तो ये एनलाइटनमेंट थिंकर्स का अपना कहना है. हो सकता है कि आप कहें बोंगी मार है, ठीक है ना, बट बहरहाल उनका अपना कहना है.
कुछ इसमें किरदार 30 इयर्स वॉर और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने भी अदा किया। 130 साल, तकरीबन 125 साल यूरोप के अंदर प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स की लड़ाई होती रही। जब मार मार के एक दूसरे को थक गए, फिर कैथोलिक्स ने कैथोलिक्स से लड़ाई कर ली। जब वो थक गए, फिर प्रोटेस्टेंट से लड़ाई कर ली। जब वो थक गए, फिर कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट से वापस एक दूसरे से लड़ाई कर ली। फिर जब वो थक गए सारे मार मूर के, बड़ा बंदा मारा उन्होंने कहा यार इस तरह करते हैं, एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। उसका नाम था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, और उसमें उन्होंने कहा कि आइंदा जो है ना मजहब की बुनियाद पर नहीं लड़ना, प्लीज, खुदा आजा वास्ता है, फिक्र ना करो। दे फाउंड अनदर रीजन टू फाइट व्हिच वाज नेशनलिज्म, ठीक है, एंड दे किल्ड 70 million people, so you know. But secularism was the thought that the church should be separated from the state. The state should not in any way be a church itself, nor should the state support one church or another church or get involved in religion in any way. It's a private matter. It's your private issue. How you want to pray, what you want to do is your private matter. State की उसमें कोई involvement नहीं होती. Do you remember Jinnah's speech where he says religion has nothing to do with the state? That's what this is saying. Exactly the same thing. So where did this concept come from that Jinnah suddenly espouses on 11th August? Where does it come from? It has a long historical precedent. आगे देखते हैं ये चिब्बी सी सर वाली बंदा जो है, इसका नाम है रोबस्पियर, ठीक है, सर भी इसका पियर सा है, इस तरह आप याद रख सकते हैं, रोबस्पियर, ठीक है ना। तो ये इसको कहते हैं रिपब्लिकन किस्म के लोग थे, ये रिपब्लिक में बिलीव करते थे। RE अगर काट दो तो क्या बन गया? पब्लिक। इसका मतलब है कि रिपब्लिक का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है ना वो पब्लिक का अफेयर होना चाहिए, सीधी सी इसी आसान सा तरीका, झटका सोल्यूशन। गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड अ पब्लिक मैटर, नॉट द प्राइवेट कंसर्न ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ किंग्स एंड राजाज एंड रूलर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पब्लिक के कुछ राइट्स हैं। ओ माय गॉड, दैट कॉन्सेप्ट दैट केम अगेन। और उनका बेसिक आइडिया ये था कि मोनार्की खत्म करनी है हमने। इटालियन सिटी स्टेट से ये काम शुरू हुआ, वेनिस से, फ्लोरेंस से, मिलान से, मिनोआ से, और ये रेनेसांस के अंदर इसने जो जान पकड़नी शुरू की। और फिर 1789 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसमें इसने कल्मिनेट किया। ये बंदा जो है फ्रांसीसी इनकलाब का लीडर भी था, इसने कई लोगों को सर तन से उनका भी जुदा किया, फिर इस बेचारे का भी सर तन से जुदा हो गया। और रेवोल्यूशन डिवाइड्स इट्स ओन चिल्ड्रन, आपने शायद सुना होगा। तो बहरहाल ये देखें, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का ओरिजिनल नाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। फिर बाद में हमने उसको कहा चलो यार इस्लाम भी कहीं डाल दो, तो हमने उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया। मगर आप हैरान होंगे 206 ममालिक में से 159 कंट्रीज के नाम के अंदर ये लफ्ज शामिल है रिपब्लिक। चाहे वो पीपल्स रिपब्लिक हो या इस्लामिक रिपब्लिक हो या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो या कोई और रिपब्लिक हो, कहीं ना कहीं रिपब्लिक गुजारना ही होता हमने, है ना। दिलचस्प बात। और मैं आपको सबसे दिलचस्प बात ये बताऊं कि ये कॉन्सेप्ट रिपब्लिक का कहां से शुरू हुआ था? एंशिएंट रोम से। जी हाँ, कदीम रोम से शुरू हुआ था। तो ये भी एक लंबी और दिलचस्प कहानी सिसरो की, और जूलियस सीजर, और उसने आके खंजर मार दिया, उसने कहा तू ब्रूटे, और वो मर गया वगैरह। नहीं पता आपने? लिटरेचर का कोई बंदा है यहाँ पे? अबे यार, जूलियस सीजर द ग्रेट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, जिसमें उसका अडॉप्टेड सन उसको खंजर मार देता है जूलियस सीजर को, और एथू का मतलब है नॉट यू टू ब्रूटस, और वो बेचारा गिर जाता है, मर जाता है। बाय द वे मैं उस जगह पे गया हूँ जहाँ जूलियस सीजर को खंजर मार के कत्ल किया था। हाँ, किसी और वक्त सुनाऊंगा ये कहानी। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोस का मतलब है पीपल, क्रेटोस का मतलब है रूल, और ये ग्रीक लफ्ज है। और ग्रीक्स कहते थे जी हम बड़े डेमोक्रेट हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इंक्लूसिवनेस, इक्वालिटी, मेंबरशिप, कंसेंट, वोटिंग राइट टू लाइफ, माइनॉरिटी राइट्स। Oh my God, how woke can you get? ट्विटर पे आजकल यही डिबेट होती है। और फिर हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इसमें भी बड़ा फर्क है। मैं कहता हूँ आप मुझे बताएं, मैं वीसी साहब से जाके बात करूंगा। आप कहते नहीं हम खुद बात नहीं कर सकते। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्सेस, एंड इट वाज, यू बी शॉक्ड टू डिस्कवर कि सिर्फ ये 20वीं सदी में, अभी थोड़ी देर पहले ही, मेरे पैदा होने से थोड़ी देर पहले जमहूरियत सही तरीके से इस्टेब्लिश हुई कि गरीबों को भी वोट का हक मिला, बीबियों को भी वोट का हक मिला, खवातीन को वोट ही नहीं देते थे, औरतों को कहते थे इनको नहीं वोट देना, इनको समझ नहीं आती चीज़ों की। ब्लैक लोगों को वोट का हक नहीं देते थे। बहुत सारे लोगों को उन्होंने फ्रेंचाइज से एक्सक्लूड किया हुआ था। फिर इस पर बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हुई, सफ्रेजेट मूवमेंट्स, द चार्टिस्ट वगैरह, जिनने कहा कि साडा भी कोई हक होना चाहिए, राइट्स। ओके, देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ये क्या है भला? वैसे तो लिबरलिज्म को हम बड़ा बुरा समझते हैं। हम कहते हैं यू डर्टी देसी लिबरल, ये कहते हैं ना,
तो वैसे आपस की बात है, देसी लिबरल्स आर अमेजिंग, वलैती लिबरल्स तौबा अस्तगफार, खास तौर पे जो क्लासिकल वलैती लिबरल्स है ना, इतने रेसिस्ट, इतने सेक्सिस्ट, आप समझते हैं कि वो टॉप लेवल का माल है ना। इस तरह हम कहते हैं यार वो जो जूते बनाते हैं एडिडास के और नाइकी के, यार बाटा सर्विस कौन ले, वो जूते बड़े अच्छे हैं। तो हम समझते हैं कि देसी चीज़ जो है बड़ी बुरी है, वलैती चीज़ बड़ी अच्छी है। मगर लिबरल्स का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मामला उलट है। पाकिस्तानी लिबरल्स pretty cool, man. Valati liberals, oh my God, OMG, GBH. I learned these terms just for you guys. Okay, so what is a liberal democracy? What the hell is this liberalism? अगर शलवार कमीज ना पहनो तो कह देते हैं आपको आप लिबरल हैं, खासतौर पे ख़वातीन को। But what does it really mean? Is it just a lifestyle choice? Is it just कि मैंने अंग्रेजी में बात कर दी इसलिए मैं लिबरल हो गया? Is it because मैं कहती हूँ मैंने रात को भी बाहर जाना है without necessarily taking permission and I want to be safe? Is that liberalism? What is it? So the concept got developed in this sense that firstly, and there are several things we can say about it, but firstly, majoritarianism versus liberal democracy. What is that? अगर majority ये फैसला करे, ऐसा करते हैं, वोट करते हैं इस पर, ठीक है, आप भी मेरे साथ वोट करें, जिसने आज पिंक शर्ट पहनी है उसका हम सर तन से जुदा कर दें। कम ऑन, वोट विद मी, कम ऑन प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, जो अग्री नहीं करता, देखो मेजॉरिटी जीत गई। अच्छा, अब अगर ये असूल अपनाया जाए तो इसका मतलब है कि अगर जस्टिस का ये असूल अपनाया जाए तो फिर तो आई एम सॉरी, आई एम गोना हैव टू कीप योर हेड हियर व्हाइल यू गो होम, ठीक है। बट लिबरल डेमोक्रेसी ये कहती है कि नो, majority is authority but within certain limits. ये नहीं आप कर सकते कि आप ये कहें कि भाई हमें पिंक शर्ट्स नहीं पसंद इसलिए हम सर चंद से जुदा करते हैं। Constitutional limits, constitutionally limits the power of the majority, guarantees individual rights, freedom of speech, association, religious practice and rights of minorities. Majority ये नहीं कह सकती कि हमें फलां लोग अहमदी नहीं पसंद तो सबको मुल्क से बाहर निकाल दो, ये नहीं कह सकते आप। In a liberal democracy, in majoritarianism, yes. अच्छा, फ़र्क क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो फंडामेंटल राइट्स में वकील जानते होंगे शामिल हो जाती हैं। वो फंडामेंटल राइट्स आप ऑल्टर नहीं कर सकते अंटिल आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। बाकी चीज़ें आप 50% मेजॉरिटी से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह दैट्स अ लिबरल डेमोक्रेसी। फिर उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट आता है कि एग्जीक्यूटिव है जिसने एक्चुअली काम करना है, लेजिस्लेचर है जिसने बातें करनी है, कानून बनाने हैं, माय मिस्टेक, जुडिशरी है जिसने सर तन से, टू मच ऑफ दैट जोक, जुडिशरी है जिसने फैसला करना है कि बाकियों ने जो फैसले किए हैं वो को फैसले चजदे हैं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं कि नहीं, हायर जुडिशरी। तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अच्छा, फिर कई किस्म के सिस्टम्स हैं। एक है इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये नहीं कि कॉलेज से पास हो गए तब इलेक्शन करोगे। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये कि आप कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं जो इन टर्न आर द इलेक्टोरल कॉलेज, जो आगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी कि आप इलेक्टोरल कॉलेज को वोट डालते हैं, वो आगे ट्रंप को या हिलरी क्लिंटन को वोट डालेंगे। फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है साडा सिस्टम। उसमें ये होता है कि जो जीता वो सिकंदर। उसका मतलब ये है कि जो भी कंस्टिट्यूंसी के अंदर मेजॉरिटी वोट ले जाए, एक वोट भी एक्स्ट्रा ले जाए, तो वो पूरी कंस्टिट्यूंसी को अब रिप्रेजेंट करेगा, और जिन लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया उनका वोट जो है इरेलेवेंट हो जाएगा। उसके ऑल्टरनेटिव है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। उसमें ये होता है कि आप बाय लिस्ट और कैंडिडेट्स और पार्टीज के हिसाब से वोट करते हैं, और जिस पार्टी को 40% वोट मिला उसकी 40 सीटें होंगी, जिस पार्टी को 20% वोट मिला है, 10 मिला है, 5% मिला है, उनकी उतनी ही सीटें होंगी जितने को वोट पड़ा है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। So liberalism क्या है? A political doctrine that takes protecting and enhancing the freedom of the individual to be the central problem of politics. आपका क्या नाम था? हाँ, ताहिर। अताहिर ने जिस तरह कहा कि मैं जो करना चाहूं, जब करना चाहूं, जैसे करना चाहूं, यही मेरी आजादी है। तो भाईजान आप तो लिबरल हुए, फिर आपको पता था आप लिबरल हैं? अच्छा ये प्रोबेबली इंटरनेट पे जाकर गालियां निकालो, यो जैसे लिबरल, हमें मजा लो, मैं तो आपने कहा मेरा नाम। So liberals typically believe that government is necessary to protect individuals from being harmed by others. ये भी बात किसी ने की थी, हॉब्स की। But they also recognize that government itself can pose a threat to liberty.
So the individual liberty is the centerpiece of liberalism. How can we create a society that maximizes individual liberty? And a lot of people, when I ask them what is freedom, and I said, na, azadi kya hai? So a lot of people said autonomy and the ability to take my own decisions and the ability to have choices, etc. So it shows how dominant the concept of liberalism is, that many people were giving answers that are squarely within a certain tradition of thought. अच्छा फिर ओ है कौन आ गया खतरनाक बाबा इतनी बड़ी दाढ़ी नाल तो ये है जी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म वो ये कहते हैं कि जिस तरह उसने कम्यूनल करी जा रहा था कि जी जितनी जो वसाइल हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उर्दू में जिनको कहते हैं ज़राए पैदावार ये ज़राए पैदावार जो हैं ये तो सारी सोसाइटी के होने चाहिए हैं आपके वो ये कहते हैं ये जो IPPs हैं इनके अकेले क्यों ये वसाइल हो सबके होने चाहिए सांझे इस्तेमाल करो. You can imagine rich people don't like this guy for that very reason, and poor people really like this guy. Like, हाँ सही कह रहा है, ये ठीक कह रहा है, बिजली का बिल देखो, नहीं चाहिए सानू. So that itself also has two different branches: social democracy on the one hand and communism on the other. The distinction between them being that the social democrats say कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता इधर जाएंगे और कम्युनिस्ट कहते हैं ओ तेरी ऐसी तसी छीन के लेंगे आज़ादी ये हक हमारा आज़ादी. ठीक है. अच्छा फिर सोवियत सोशलिज्म बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 डरोनी सी तस्वीर मैंने लेनिन की लगाई हुई है धंधेरे से आपको देख रहा है क्या कर रहे हैं आप. तो इसमें और किस्म के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पैदा हो गए वर्किंग क्लास की कमिटीज पैदा होंगी कॉल्ड सोवियट्स. दैट्स बेसिकली कमिटी ऑफ वर्कर्स दैट वाज built to fight the capitalists. अब वो सोवियट्स जो हैं वही पार्लियामेंट्स बन गई. How interesting is that? And that was called the dictatorship of the proletariat. It wasn't Lenin's dictatorship, it was dictatorship of the poor against the rich. उनकी भी गवर्नमेंट की कई ब्रांचेस थी. लेजिस्लेटिव ब्रांच में सुप्रीम सोवियत था जो यूनियन ऑफ सोवियत ऑफ नेशनैलिटीज़ और दूसरा सोवियत ऑफ यूनियन. दो मुख्तलिफ हाउसेस थे जिस तरह हमारा सेनेट और हमारी नेशनल असेंबली है. तो इस तरह फिर उनकी एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच थी कॉल्ड द काउंसिल ऑफ पीपल्स कॉमिसार्स या काउंसिल ऑफ पीपल्स मिनिस्टर्स बाद में उसका नाम हुआ. जो इलेक्ट होती थी सुप्रीम सोवियत उसको इलेक्ट करती थी. फिर जुडिशरी थी सुप्रीम सोवियत जुडिशरी को भी इलेक्ट करती थी और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था. सो दैट्स येट अनदर काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. चार्ली चैपलिन? नो, दिस इज एडोल्फ हिटलर. फिर फैशिज्म है. फैशिज्म वाज विरुलेंटली नेशनलिस्टिक. जर्मन्स आर द बेस्ट आर्यंस एंड सो ऑन. सुना ना आपने कभी तकरीरें उसकी सुने हैं जर्मन के अंदर वैसे ही डर लग जाता है और नहीं क्या रहे मगर साउंड बड़ी स्कैरी. एनीवे सो नेशनल इट वाज वेरी नेशनलिस्ट इट वाज वेरी इंपीरियलिस्ट. इंपीरियलिस्ट का मतलब है दूसरे मुल्कों को हमने फतह करना है अपने मुल्क के मातहत करना है. इट वाज वेरी एंटी कम्युनिस्ट. Marx, the Jew, etc. This, that, and the other. It was very anti-liberal as well. Bloody liberals इनको की पता इंडिविजुअल फ्रीडम की गल करते रहते हैं. हम तो रियासत बनाएंगे और तगड़ी रियासत बनाएंगे. And in fact, Italy and Germany are the two main countries that developed these doctrines of fascism to begin with. And they wanted to remove all checks and balances from the executive. Japan and Spain also followed them. And then there was a big war. The mother of all wars. The biggest war that humanity has ever seen. उससे बड़ी जंग अभी तक शुक्र है हमने देखी नहीं. इतनी ब्रूटल और हॉरिबल वॉर थी. मगर फाइनली इसको शिकस्त हुई और वो ख़त्म हुआ मामला. फिर है अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड पीपल्स डेमोक्रेसी. ये थर्ड वर्ल्ड के अंदर और ईस्टर्न यूरोप के अंदर शुरू हुई ड्यूरिंग नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म. ये बाबा पता है कौन है? हाँ, हो ची मिन फ्रॉम वियतनाम. So he led the struggle against the French, then later against the Americans, and established the People's Republic of Vietnam. So वहाँ पे भी constitutional role of the Communist Party, China, Vietnam, Cuba, Laos are examples of people's democracies. Also certain Eastern European countries. And then this is Idi Amin, military dictatorships. Mostly this is in third world countries. आपको पता ही होगा. हमारे ऐसे मुल्कों में तो कभी नहीं होगा. It can be, by the way, it can be right wing and it can also be left wing. एक ज़माना था कि military dictatorships left wing भी हुआ करती थी. मिलिट्री के अंदर लेफ्टिस्ट भी आ जाते थे ऊपर. खास तौर पे टर्की, मिडिल ईस्ट इज अ वेरी गुड एग्जांपल. Some was supported by the West in the context of the Cold War for geostrategic reasons. अगर वो लेफ्टिस्ट होते थे तो वो सोवियत यूनियन के पीछे था. अगर वो राइटिस्ट होते थे तो अमेरिका उनके पीछे था.
अयूब, याहिया, जिया, मुशर्रफ बड़े अच्छे लोग थे। लैटिन अमेरिका में कई एग्जाम्पल्स हैं, जुआन पेरोन इन अर्जेंटीना, फुल्हेंसियो बतिस्ता इन क्यूबा, फ्रांसवा डुवालियर इन हेटी, एनास्तासियो समोसा of Nicaragua and Alfredo Stroessner, etc. Then we have many examples like Mobutu. सुना कभी Mobutu का? बड़ा जालिम आदमी था। पिनोशे, फ्रांको इन स्पेन में भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स और फैशिस्ट डिक्टेटरशिप्स रही हैं। इडी अमीन ये बैठा है जो लोगों के जिस्म के हिस्से काट कूट के फ्रीजर में डाल देता था। जी हाँ, he was in competition with Henry VIII about who can be more brutal. इरशाद ऑफ बांग्लादेश, there was also a general ज़िया of बांग्लादेश। एक साढ़े को जनरल ज़िया सी, एक उन्होंने कोल भी जनरल ज़िया सी। आहो, उनका नाम था जनरल ज़ियाउर रहमान, और उन्हीं की बेटी जो है वो अभी भी पॉलिटिक्स में बड़ी एक्टिव है एज द बांग्लादेश नेशनल पार्टी। सो चाइना में चिंग काई शेक। अच्छा, यू कैन ऑल्सो हैव अ मिलिट्री पार्टी डिक्टेटरशिप विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इट्स नॉट जस्ट कि मिलिट्री रूल करती है, मगर मिलिट्री के साथ कोई पार्टी भी होती है, उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी होती है। सो सदाम हुसैन, बाथिस, चिंग काई शेक, द नेशनलिस्ट, गद्दाफी, these are certain examples. Even I would say to some extent, but maybe not, but Latin America has many examples of party dictatorships of that. So you can see what an interesting wide variety of things we have. Then we have hybrid regimes, also known as Praetorian democracies. Involves the setting of a national security council, जिसमें सिविल भी होते हैं, मिलिट्री लोग भी होते हैं, और वो हुकूमत को चलाते हैं। गले में कुछ फंस गया, आगे चलते हैं, पता नहीं है इसकी कोई मिसाल नहीं मिल रही, मगर आगे चल। फिर पॉपुलिज्म क्या होता है? आपने सुना होगा ट्रंप बड़ा पॉपुलिस्ट है, आपने सुना होगा चावेज पॉपुलिस्ट है, आपने सुना होगा इमरान खान पॉपुलिस्ट है। Populist is a political approach that strives to appeal to ordinary people who feel that their concerns are disregarded by elites. ठीक है, एंटी एलिटिस्ट जरूर होता है, मगर इट कैन बी राइट विंग और लेफ्ट विंग, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रंप राइट विंग पॉपुलिस्ट है, चावेज लेफ्ट विंग समझा जाता है। द टर्म एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोम, जब दो वहां पे पार्टियां थी, एक सेनेट को रिप्रेजेंट करती थी और एक का नाम था पॉपुलर पार्टी, जो जूलियस सीजर के साथ जुड़ी हुई थी। ये तो आपको पता ही नहीं था, कैसी मजेदार बात है। हु आर वी गोइंग टू लुक एट टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? आई मीन दीज कॉन्सेप्ट्स आर कॉम्प्लेक्स वंस, कंटेस्टेड वंस, बहुत सारे लोगों ने इन पर लिखा है, इनकी बड़ी अपनी एक लंबी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ईच ऑफ देम, मगर हम वो सारी तारीख तो नहीं पढ़ सकते। हर एक कॉन्सेप्ट पे पीएचडी आप कर सकते हैं, आप जिंदगी भर पढ़ सकते हैं, आप कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं। मगर वो आर सम ऑफ द बिग नेम्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे, अफलातून, जो कि अंग्रेजी ज़बान में हम उसको प्लेटो कहते हैं। वो कहता है कि सियासत तब ठीक होती जब हमारी कुदरत के साथ, हमारी फितरत के साथ वो जुड़ी हो, इंसान की फितरत के साथ जुड़ी होनी चाहिए। और फितरत जो है वो तीन मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, ट्राइपार्टाइट नेचर ऑफ द बॉडी, सोल एंड माइंड एक्सेट्रा। सो चैरिटियर है जो कि दो घोड़े चला रहा है, और घोड़ा जो है ना एक इधर भाग रहा है और एक इधर भाग रहा है, और जो उसको लगाम उसने दी हुई है ना वो आपकी अकल है, आपकी रीजन है, एंड इज ट्राइंग टू control these horses pulling in opposite directions. The spirited element is good, needing to the touch, not needing the touch of the whip, ever obeying the voice of reason. एक spirited element है, एक appetites हैं, एक ढिड से आवाज निकलती है, एक छाती से आवाज निकलती है। ढिड से जो आवाज निकलती कहती है पीडीसी जाना है, सबवे सैंडविच खाना है, उसको नहीं परवाह अच्छा है बुरा है। और ये कौन लोग हैं? गरीबड़े। हाँ, सॉरी टू यूज क्लास बायस टर्म्स, आपने कहा तैमूर रहमान कैंसिल करो। प्लेटो को कौन समझते? हु डिड प्लेटो थिंक आर द वंस हु हैव बॉडीली एपेटाइट्स that require temperance? These are the poor, the working people, the people who were working with their hands. He said कि बस इनकी appetite होती है और कुछ नहीं। और who were the spirited elements? The soldiers. ये छाती से निकले हुए, इसलिए बहादुर हैं। ठीक है, वो टिड से निकले, वो टिड का ही सोचते हैं हमेशा। और फिर वो जो जैन से निकले हुए। Doesn't this sound awfully close to the Brahminical caste system? है ना, इंटरेस्टिंग ना। तो ये भी यही कहता था जो ब्रेनी लोग हैं ना उनको रूल करना चाहिए, वो फिलोसोफर्स को रूल करना चाहिए। जब फिलोसोफर बादशाह बनेंगे ना, फिर देखना कैसी हुकूमत बनेगी। बल्कि मेरा ख्याल है कोर्स यहीं पे ख़त्म करें आप यहीं पे ख़त्म करें। एक फिलोसोफर आपके सामने खड़ा है, उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो भी कभी बादशाह बन जाए। आप अगर लिफ्ट करा दे तो शायद पाकिस्तान ठीक हो जाए। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिलोसोफर किंग इज गिवन बाय प्लेटो। तो प्लेटो को पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ मेटाफर्स ऑफ लाइट एंड शैडो? प्लेटो की मेटाफिजिक्स क्या है, और प्लेटो रीजन किसको समझता है, और पॉलिटिक्स और रिपब्लिक क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें देखेंगे।
ठीक है, प्लेटो को ओरिजिनल में भी पढ़ेंगे और प्लेटो की ऊपर जिसने लिखा है उसको भी पढ़ेंगे। फिर स्किपिंग अ लिटिल बिट अहेड, मैं सिर्फ आपको हाइलाइट्स दे रहा हूँ कोर्स के। फिर हम अरस्तु को पढ़ेंगे, ये भाईजान ने तो पहले पढ़ के आए हैं, किधर गए वो, इधर ही बैठे थे, हाँ ये भाईजान। अच्छा, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल ही सेज। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग हमें अखबार पढ़ने का बड़ा शौक है, पॉलिटिक्स का बड़ा शौक है। इसका मतलब है कि वी लाइक टू लिव इन सोसाइटी, दैट स्ट्रेंज वर्ड, वी लाइक टू एंगेज विद पीपल, we are gregarious, we are social, we don't like to live in a mountain on our own, we want to live with other people। ये जो है ना, मैं जो मर्जी करूं, जब मर्जी करूं, पहाड़ पे जाके रह लो, जो मर्जी करो, but you don't want to go live in a mountain, you want to live with people and yet do what you want। This is kind of a contradiction। and in fact आप बहुत कुछ जो करते हैं, हेगल आपको बताएगा, वो परफॉर्मेटिव होता है वगैरह, वो बाद में देखेंगे। बहरहाल कहता है मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, मैन डिजायर्स टू लिव विद अदर्स, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन फेलोशिप इज ओनली टू बी फाउंड इन द स्टेट। सो स्टेट इज लाइक अ फ्रेंडशिप, इट्स लाइक अ बॉन्डिंग, इट्स लाइक I really want to live with you. You don't understand. Let's make a state together instead of children. Anyway, so man achieves his potential in the city-state. Without a state, zindagi adhuri hai, he's saying. He was so in love with the state, imagine. Natural law is like, the state is like a natural organism. It develops kind of like the nature. And political obligation is based on some natural law. The state itself was a natural organism. ये कई दफ़ा आप आर्ग्यूमेंट सुनेंगे, लॉ ऑफ नेचर। इसीलिए मैंने वो एनिमल्स वाली बात छेड़ी, नेचर वाली बात छेड़ी, कि नेचर को बहुत लोग रेफर करेंगे कि दिस इज ह्यूमन नेचर, दिस इज नेचुरल, दिस इज दिस। हम भी आरोपित कर रहे थे। एक ज़माना था जब मैं 13 साल का हुआ था, तो मेरे दोस्त ने कहा, यार तैमूर तुम, मैंने गौर किया डिओड्रेंट नहीं पहनते हैं। मैंने कहा यस, I like to be natural। I'm not joking, this is true story। कहता अच्छा यार थोड़ा दूर होके नेचुरल हो जा तुम प्लीज, ठीक है ना। तो नेचुरल is not necessarily the best, but there is something to it as well। We can't be divorced from our nature either। So there will be a lot of discussion you'll see between, on the one hand there will be people like Rousseau who will say हम अपनी नेचर से अलग हो गए, ये सबसे बड़ा मसला है। और दूसरी तरफ और लोग होंगे कहेंगे नेचर तो साडा पहले ही जानवरां लगा है। We have to move against nature to become civilized। Big debate। So city states, he thought, must be small, छोटे छोटी रास्ते होने चाहिए। If a state has too many, it becomes a nation and is almost incapable of constitutional governments or of ethical or political unity। 10,000 लोग होने चाहिए बस, इतनी बड़ी स्टेट होनी चाहिए, से बड़ी नहीं। लम्स में कितने लोग हैं? 4,000 तो स्टूडेंट है ना, तो हाँ 5,000, चलो डबल कर लो। नहीं मेरा ख्याल है 5,000 से, हाँ शायद 5,000 ही हो, मेरे ख्याल 200-300 तो माली होंगे, मैं गलत तो नहीं कह रहा। 100 को गार्ड होंगे, आया ही नहीं होंगी, होती हैं बहुत सारी, नहीं कितनी होंगी, कोई 150 तो होंगी कम से कम, ज़्यादा ही होंगी शायद, आई डोंट नो। बट एक फौज है पूरी जो इस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करती। मैं को झूठ बोले, अभी आप जाएंगे, आप यहाँ पे करके चले जाएंगे, कोई चीज़ फेंक जाएंगे, कोई ना कोई आके उठाएगा उसको, कि नहीं आपको तो खबर ही नहीं होगी किसने आगे उठाया, मगर सुबह आप आएंगे साफ होगा, फर्श भी जो है वो चमक रहे होंगे और वगैरह वगैरह, राइट। सो एक फौज है जो आपको मेंटेन करती है। पीडीसी के अंदर भी वो खाने बना रहे होते हैं, जिस दिन आपसे नाराज होंगे उस दिन करते होंगे I'm joking, no they don't do that। I'm joking, dark sense of humor, only kidding, but that's why you should be nice to them, okay। So point is कि maybe 5,000-6,000, I don't know। So double कर लो लम्स को, बस इतनी रियासत होनी चाहिए। आप सोच रहे हैं you live in a country of 240 million people, it's one of the largest countries in the world। आप सोच रहे हैं ये एरिस्टोटल क्या बात कर रहा है ना, इंटरेस्टिंग बात। खैर, सो एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, पूछेंगे what makes a citizen, what are the basic types of political associations, what are the corrupted forms of those associations, what is a polis, and what's the difference between a household and a state, and so on and so forth। Aristotle, amazing guy। Plato, amazing guy। Aristotle एरिस्टोटल को औरतों पर नहीं पढ़ना चाहिए, because after that you will hate the guy। he is so sexist कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, ठीक है। प्लेटो फेमिनिस्ट, एरिस्टोटल मिसोजिनिस्ट, ठीक है। मगर बहुत सारे और क्वेश्चंस पे एरिस्टोटल बहुत बड़ा जीनियस है, ठीक है। अब मुझे पता है इसके लिए मैं कैंसिल हो जाऊंगा, मगर कम से कम ये नहीं मैं कह रहा कि दुरुस्त कह रहा है, मगर ये मैं कह रहा हूं कि उसका जो इम्प्रिंट है प्लेटो और एरिस्टोटल का ह्यूमैनिटी की थॉट पे, और खासतौर पे वेस्टर्न फिलॉसफी, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। बाय द वे ये भी मुझे भूल गया आपको बताना कि वेस्टर्न फिलॉसफी डजंट मीन इंग्लैंड। वेस्टर्न फिलॉसफी इज एवरीथिंग दैट इज नॉट चाइना एंड हिंदू एंड अफ्रीकन
All Middle East is considered Western philosophy. What a interesting idea. So huge intellectual footprint. You cannot imagine. प्लेटो के बारे में एक फिलोसोफर एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने ये कहा कि all of Western philosophy, all of it is but footnotes to Plato. प्लेटो पे कोई कमेंट कर रहा है, कोई उसके खिलाफ, कोई उसके हक में. इतना बड़ा उसका इन्फ्लुएंस. और एरिस्टोटल जो था वो किसका शागिर्द था यार? प्लेटो सोक्रेटिस का शागिर्द था. एरिस्टोटल प्लेटो का शागिर्द था. ठीक है, आप मेरे शागिर्द हैं, बस आगे बात समझ जाया करो. ठीक है. सो एक तसलसल था. 20 साल उसने प्लेटो से पढ़ा है. और प्लेटो ने एरिस्टोटल के पैर धोए, प्लेटो ने सोक्रेटिस के पैर धोए और सेब लेके आता था वो उसके लिए. डियर टीचर, यू आर द बेस्ट टीचर एवर. हिंट हिंट. So this was a long intellectual relationship, but after 20 years अरिस्टोटल जो है अपने उस्ताद के खिलाफ हो गया. उसने कहा नहीं, मेरा उस्ताद गलत कह रहा है. उस लोगों ने कहा यार तेरा उस्ताद है, उस्ताद शागिर्दी बड़ी चीज़ होती है, अपने उस्ताद को कैसे तुम बुरा भला कह सकते हो? बुरा भला जाती तौर पे नहीं, मगर ये कि गलत है. कहता है beloved is Plato, but even more loved is the truth. हक के लिए मैं लड़ूंगा अपने उस्ताद से भी. प्लेटो ने जवाब दिया, Aristotle is like the colt that has kicked his own mother. देखो ना यार, ट्विटर पे अगर आपने जवाब देना है ना तो ऐसे जवाब लिखा करो. ये क्या आप लिखते हो, यू ब्लडी देसी लिबरल गाली गलौच? यार कोई स्टाइल, कोई पनाश, कोई तरीका होना चाहिए बात करने का. कि जिस बंदे को आप गाली भी दे रहे हैं ना वो भी कहे यार क्या बात सर, क्या बात, गालिब की तरह. ठीक है. अच्छा, ये ओए कैसा निकोलो मैकियावेली, सही पढ़ा मैंने? क्या नाम है इसका? मैकियावेली. निकोलो मैकियावेली बेचारे को ही गॉट अ रियली रफ प्रेस. कैंसिल हो गया बेचारा उस जमाने के ट्विटर पे. और इसको कैंसिल करने में कैथोलिक चर्च का बड़ा अहम किरदार था. मगर मैं आपको सच्ची बात कहूं, इट्स नॉट दैट बैड. इन फैक्ट, इन माय ओपिनियन, ही मेक्स अ लॉट सेंस. और बड़ा हीरो है अपने जमाने का. और इटली अगर आप जाए तो इटली में उसके स्टैचूज है. मैं गया हूं. और इटालियन से अगर आप पूछें कि मैकियावेली का क्या बात, मैकियावेली, we love him. So they really admire him. And he is a genius. And he's the person who really kicks off a kind of renaissance change in the way in which we start to think about politics in the world. He introduces the idea of realism. What is that? Rulers cannot be bound by morality. So rulers cannot be bound by morality. Haq sach, ye wo, forget about it. He's saying, but just for the ruler, not for you. You're not the ruler. The ends justify the means, only for the prince, not for the general public. झूठ बोलना पड़े, फ्रॉड करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, कत्ल करना पड़े, कर दो अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ. फिर है ना दिलचस्प बात. However, means that make the people hate their prince must also be avoided. चिलाकी कर सकते हैं, एक आध बंदे को एफ भी दे सकते हैं, बैठा है, मगर सारी क्लास को बुरा भला नहीं कहना. A prince must, ideally a prince is both loved and feared. सुना कभी आपने ये बात? समझो मैं प्रिंस हूं. I would like to be loved and also feared. But love का मसला ये है, it's a two-way street. आपकी मर्जी है, आप मुझे पसंद करें या ना करें, हैं जी. But fear, आप फैसला करें. I'm not going to give him a very good grade. लो F. वो नहीं, क्या कहते हैं उसको जो होता है वो टीचर इवैल्यूएशन फॉर्म. 0 भी कम है, -5 ही होना चाहिए. ठीक है ना. ये आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, राइट. मेरी कोई एबिलिटी नहीं है टू चेंज दैट. ठीक है. सो लव इज समथिंग दैट्स म्यूचुअल, दैट यू चूज टू गिव इट टू मी. बट फियर इज समथिंग आई कैन क्रिएट इन यू विदाउट योर चॉइस. So Machiavelli says कि if you have to choose between love and fear, what should you choose for? Fear. ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर मुझे फैसला करना पड़े तो भाई डंडा बड़ा सा मैं रखूँ अपने पास, DC वाला, ताकि आपको काम करना ही पड़े. ठीक है ना. वैसे मैं कहता हूँ देखो यार, मज़ा आएगा काम करने का, कितना अच्छा है पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो ऐसी की तैसी पे. सो फियर कितनी मज़ेदार किस्म की बात है. बिकॉज फियर इज़ नॉट म्यूचुअल. Fear is something I can induce in you even when you don't want it, even when you don't consent to it.
ओए ओए, डिड यू एवर थिंक अबाउट दैट? परेशान हो गई हैं ये तो, परेशान हो गई है ना, दिलचस्प बात है ना। बट एक पॉलिटिशियन के लिए आप सोचिए कितनी दिलचस्प, कितनी वो मज़ेदार किस्म की बात कर रहा है, जो थोड़ी औखी लग रही है मगर हकीकत भी उस पर मबनी है, इस सेंस में कि अगर कोई हेड ऑफ स्टेट जो है वो अपनी रिट नहीं इस्टेब्लिश कर सकता तो वो सारा दिन यही कहता रहेगा, प्लीज क्रिश्चियंस को ना मारें, प्लीज उनके घर ना जलाएं, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ऐसे तो कोई बात नहीं बनेगी। So we'll read Machiavelli and read on Machiavelli. We'll see how he differs from Plato and others and how he changes the entire focus of the medieval period. What are his basic aims? Where does political power reside? What is power? Actually सबसे अहम बात यह है कि Machiavelli पहली दफ़ा एक्सप्लेन करता है कि पावर है क्या चीज़। और बाय द वे मैं आपको ये बात बताऊँ कि पॉलिटिकल साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं जब डेफिनेशन करता हूँ ना पॉलिटिकल साइंस की, तो मैं ये कहता हूँ इट इज़ द स्टडी ऑफ पावर। That's what it really is. It's not the study of let's be nice to everybody. No, it's about power. Politics is about power. Okay? All the rest is builds around that. And Machiavelli is the one who cleared our minds on this idea. Oh yes. Hobbes. अगर मैं ना होता, कहता है हॉब्स, तो आपने सब एक दूसरे के गले काट रहे होते आप। अगर रियासत ना होती तो आप लोग इतने पागल हैं कि एक छोटे से पेन पे, एक छोटे से बैग पे, एक छोटे से एयरफोन्स पे आपने एक दूसरे के गले काट देते थे। ये सिर्फ आप बीबे बन के इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि सर आए हुए हैं। जब मैं नहीं था यहाँ पे सारे टटर मटर 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 कर रहे थे ना, कोई पटेटो भी कर रहा था, कोई मटर कर रहा था, कोई आलू गोश्त कर रहा था। बारह जब मैं आ गया सब चुप हो गए, डिसिप्लिन में आ गए। देखा ना, इससे साबित ही होता है कि यू नीड मी, you need the Leviathan, which is a monster. It is otherwise life would be nasty, it would be brutish, it would be short. जिंदगी हो ही ना, बेकार हो, सिविलाइजेशन ही ना डेवलप हो जब तक कि आपके सर पे कोई डंडा ना लेके रख बैठे कि खबरदार कि उसका हक मारा तुमने। और ये हम खुद ही इस्टेब्लिश करते हैं। एंड वी ट्रेड लिबर्टी फॉर सिक्योरिटी। इसीलिए मैंने कहा कि जस्टिस और लिबर्टी में क्या तजाद तो नहीं है। क्लासिकल हॉब्स, तो हॉब्स को पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इस बाबे को पढ़ेंगे, जरा बीबा आदमी है, शक्ल से भी लग रहा है, आप देख रहे हैं। इसका नाम है जॉन लॉक। ठीक है, वो कहता है हाँ स्टेट ऑफ नेचर थोड़ा इम्परफेक्ट है क्योंकि हम अपने आप से हमेशा ज़्यादा प्यार करते हैं, थोड़े नार्सिसिस्ट हैं हम, एंड दैट्स व्हाई वी कांट बी अ जज इन आवर ओन केस। वकील तो ये बात जानते हैं, लेट नो मैन बी अ जज इन हिज ओन केस। तो इसलिए हमें रियासत की ज़रूरत है क्योंकि हमें न्यूट्रल जज चाहिए। किसी ने यहाँ पे कहा था मिडिल मैन चाहिए, सिर्फ रोकने के लिए नहीं, आर्बिट्रेट करने के लिए भी कि किसने सही किया किसने गलत किया। तो लॉक आ गया। अच्छा, लॉक को क्लासिकल लिबरल समझा जाता है और वो है भी, मगर वो अपने ज़माने का बड़ा इनकलाबी लीडर भी है, इनकलाबी आदमी भी है। ये आप देखेंगे कि उस ज़माने में लिबरल्स एक किस्म के इनकलाबी भी होते थे। फिर असल इनकलाबी तो अब आया है, जॉन जैक रूसो, जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी दी। वो कहता है कि एक बच्चा जो है, इंसान जो है, शुरू में परफेक्ट था, खुदा ने उसको बिल्कुल ठीक बनाया जैसे कुदरत आपकी फितरत के हिसाब से। और फिर ये सिविलाइजेशन ने, इस तहजीब ने सारी आपकी दिमाग को ख़राब कर दिया, आपको करप्ट कर दिया। सिविलाइजेशन करप्ट्स ह्यूमैनिटी, टेक्स अस अवे फ्रॉम आवर रियल कोर। एंड सो ही इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ अ रिपब्लिक दैट विल बी बेस्ड ऑन द जनरल विल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बड़ी मज़ेदार कॉम्प्लिकेटेड किस्म की आर्गुमेंट है। तो रूसो को भी पढ़ेंगे, बेचारे के बाल उड़ गए, मेरी क्या गलती है। मगर बहरहाल जॉन स्टुअर्ट मिल, इसका प्यो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसका टीचर भी जेरेमी बेंथम था, इसका प्यो जेम्स मिल था, ये उसका खुद नाम जॉन स्टुअर्ट मिल था। जॉन स्टुअर्ट मिल जब बहुत छोटा सा था ना, तो उसका प्यो कहता था कि उसका प्यो था जेम्स मिल, जो खुद बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था, उसने हिस्ट्री ऑफ इंडिया वगैरह लिखी। वो कहता था कि आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, अगर हुआ तो हाथ खड़ा करके आपने बताना है। कहता मेरा पुत्र तो जीनियस होएगा, ही इज गोना चेंज द वर्ल्ड। तो उसने प्राइवेट ट्यूटर रखा जेरेमी बेंथम को। सोचो यार, जेरेमी बेंथम अपने ज़माने का सबसे बड़ा फिलोसफर माना जाता था इंग्लैंड का। उसको रखा कि मेरे बच्चे को आके प्राइवेटली ट्यूशन दो। और जॉन स्टुअर्ट मिल जो है प्राइवेटली ट्यूशन पढ़ता था, और उसने ग्रीक भी पढ़ ली, और उसने लैटिन भी पढ़ ली, और उसने फ्रेंच भी पढ़ ली, और उसने पता नहीं कितनी ज़बानें पढ़ ली, और ट्रिग्नोमेट्री भी वो क्लास 10 साल की उम्र में कर रहा था। जीनियस था, मगर फिर फाइनली उसका जो हुआ ना, मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। हाँ, डिप्रेशन में वो चला गया। कहता मेरी जिंदगी मेरे प्यो ने बर्बाद कर दी है यार, मुझे इतना पढ़ाया कि आई एम नॉट अ हैप्पी पर्सन। किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ?
अगर आप कहते तो मैं क्लास खत्म कर देता, मगर चलो ठीक है। किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि अम्मी अबू ने बहुत जबरदस्ती पढ़ाया है? आज हो रहा है। ओके, गुड यार, आई लाइक दिस गाय, वेल सेड। तो आज जिस तरह मैं आप पे जबर कर रहा हूं, ऐसा ही जेम्स मिल ने जॉन स्टुअर्ट मिल के साथ किया। फिर उसके बाद उसने अपने पेरेंट की अथॉरिटी पे रिबेल किया और ये वो। और दिलचस्प बात यह कि अगरचे जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उसको ही इज नोन एज अ लिबरल पार एक्सेलेंस, बट ही इज ऑल्सो सोशलिस्ट एंड ही इज ऑल्सो फेमिनिस्ट, वन ऑफ दी फेमिनिस्ट राइटर्स ऑफ हिज टाइम। इधर औरतों के साथ जो होता है ना सोसाइटी में, ये सबसे बड़ा मसला है। फेल इन लव विद अ वुमन हु वाज अ फेमिनिस्ट एंड बिकेम हिमसेल्फ अ फेमिनिस्ट। कैसी मजेदार बात। उसके बाद इमैनुअल, ही जस्ट कांट, he just can't, he's really tried but he can't। तो कहता है कि इमैनुअल कांट जो है ना बड़ा मजेदार किस्म का आदमी था। इसके बारे में मशहूर ये था कि इसको वॉक करने का बड़ा शौक था। हर शाम को इसने वॉक करनी होती थी और वॉक ये एग्जैक्टली एक ही टाइम पे करता था, मतलब पूरे 4:03 पे इसने अपने कमरे से निकला और वॉक करनी। तो लोग उसके पिंड के ये कहते थे, कोनिसबर्ग में वो रहता था, कि यू कैन सेट योर क्लॉक बाय द टाइम दैट इमैनुअल कांट टेक्स अ वॉक। जब वो वॉक के लिए निकलेगा ना, इसका मतलब 4 बज गए। तो इतना वो एग्जैक्ट किस्म का बंदा था, छोटा सा हाइट का, बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग गाय। ही ट्राइड टू टेक द बिग डिबेट्स ऑफ हिज टाइम। एक तरफ वो थे जो कि कॉन्टिनेंटल रैशनलिस्ट थे, जिसमें बड़े बड़े नाम थे। डेकार्ट का नाम था, लाइबनिज का नाम था, स्पिनोजा का नाम था। और दूसरी तरफ वो थे जो कि इंग्लिश एम्पेरिसिस्ट थे। जॉन लॉक का उसमें नाम था, वो छोटा नाम तो नहीं है, लॉक कर देगा वो आपको ऐसी की तैसी। फिर उसमें फ्रांसिस बेकन का नाम था, बेकन आपकी साड़ देगा वो। उसमें बिशप बाकले का नाम था, उसमें डेविड ह्यूम का नाम था। बड़े ग्रेट लोग थे ये। तो इसने कहा मैं सबको ही लेकर साथ चलूंगा, तुम भी गलत नहीं कह रहे, तुम भी गलत नहीं कह रहे, मैं सिंथेसाइज करके दोनों की बातों को मिला के अल्लामा इकबाल टाइप काम करके जो है ना कोई नई चीज़ बनाऊंगा। अल्लामा इकबाल ने भी यही कोशिश की, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में। उन्होंने कहा थोड़ा सा मार्क्सिज्म भी ले लो, थोड़ा सा इस्लाम, थोड़ा सा कांट, सब कुछ जो है मिक्स करके तो हम जो मैं एक नई आइडिया, एक नया सिंथेसिस दूंगा। यही वजह है कि लोग जो अक्सर मुझे कैंसिल कर रहे हैं आजकल कि आपने इकबाल का कोई ऐसा पहलू जो है शेयर। तो रिसेंटली मैंने इकबाल की कुछ पोइट्री वगैरह शेयर की, लोग बड़े अपसेट हो गए, सर ये आप इकबाल को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि इकबाल जो है ना बहुत मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड्स को सिंथेसाइज करने की कोशिश करता है। So he, on the one hand, he praises, socialism. On the other hand, he criticizes it. On the one hand, he praises democracy. On the other hand, he criticizes it. On the one hand, he praises Islam. On the other hand, he criticizes. Yes, कि ये सारे तकलीद में फंस गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही, दुनिया में जदीदियत की तरफ नहीं जा रहे। On the one hand, he takes from Kant, he also criticizes, etc. And then he tries to create a synthesis. Is he successful इस खिचड़ी बनाने में? I don't know if the khichdi tastes very good, but he certainly tried to make a good khichdi. That's a given. So that's why a lot of people get confused about Iqbal and about Immanuel Kant as well. Because when you try to attempt a great synthesis of very differing ideas and contradictory ideas, it's not an easy thing to do. So Kant is also one who tries that synthesis. So we'll read him, although we won't read that much of his synthesis itself, his philosophical work. I will maybe talk about it. But we'll certainly read him on the Enlightenment, which is, he says, enlightenment जो है is the self-reflexivity of man. Thinking about yourself, understanding yourself. It's an era of maturity. फिर हम कांट को देखेंगे, फिर हम इस पागल आदमी को देखेंगे। इसका नाम था हेगल। हेगल की दिलचस्प बात यह है कि उसके लेक्चर्स इंतहाई पॉपुलर थे जहाँ वो पढ़ाता था। पहले तो स्कूल टीचर था, फिर बार उसके बाद यूनिवर्सिटी का हेड भी बना। जब यूनिवर्सिटी का हेड बना तो एक पॉइंट पे आके उसके लेक्चर्स बड़े पॉपुलर हुआ करते थे, और मगर किसी को कोई बात नहीं समझ आती थी कि लेक्चर में बाबा क्या कह रहा है। ही वॉजेंट, बड़े आराम से बैठ के अपने वो लेक्चर सुनाता था और सब कुछ, किसी को कुछ समझ नहीं आती थी। कहते थे पता नहीं गल की थी, मगर रहा बड़ा इंटेलिजेंट, मुड़ के आ जाते थे। तो हेगल के मास्टर स्लेव डायलेक्टिक को देखेंगे, विच इज इन्फ्लुएंस्ड फेमिनिज्म, इट्स इन्फ्लुएंस्ड मार्क्सिज्म, इट्स इन्फ्लुएंस्ड everything after him. He had a huge influence. His concept of the spirit, the geist, the mind, as a historical manifestation of a logical concept. His concept of sublation. ये लफ्ज़ जो है ना बड़े मुश्किल लगते हैं ना, ये मुश्किल नहीं है। ये सारे लफ्ज़ मैं आपको समझा दूंगा, बड़े आसान है। और जब आप लफ्ज़ समझ जाएंगे, जब आप समझ जाएंगे ना कॉन्सेप्ट को, क्योंकि भाई नहीं जी कहा उसी इतना मोटा लफ्ज़ इस्तेमाल करने की जरूरत क्या थी, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। और हिस्ट्री एज अ डायलेक्टिक, ये भी तस्वर और कॉन्सेप्ट पहले हेगल ने दिया।
और फिर हेगल से मुतासिर होके कार्ल मार्क्स साहब आगे, जिन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का तस्वर हेगल से ही काफ़ी हद तक एक्सट्रैक्ट किया। Theory of surplus value, दी यानी कि, और why do 42 people hold the same wealth as 3.7 billion poorest, as Oxfam says. In fact, अब ये चेंज हो गया स्टेटिस्टिक, अब ये 42 people नहीं है, ये मैंने आउटडेटेड डेटा लगाया हुआ है, अब 6 people have more money than half the planet. So how does that possible? ये मार्क्स ने एक्सप्लेन किया theory of surplus value. बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, लोग कहते हैं मार्क्सिज्म फेल हो गया। सारा डेटा जो है वो वही दिखा रहा है कि मार्क्सिज्म ने जो इकोनॉमिक मैपिंग की है वो किस तरह से दुरुस्त साबित हो रही है। Anyway, our ideas are formed from material experience. The dominant ideas are the ideas of the dominant class and the ideas of the domination of that class. ये सब कॉन्सेप्ट पे बात करें।